Hallelujah. Yes. Because when we live in our identity, we get discouraged. But when we live in God's identity, we will be encouraged and we will be able to move ahead in the life of faith. So let's sing the song which says, कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए. कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए. लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समा. कैसे कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए. लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समा. आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं. आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं. तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं. धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं. तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए. आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं. आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं. तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं. धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं. मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले. अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे. मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले. अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे. यीशुआ, 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 यीशुआ. आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं. Let's all sing. आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं.
प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। Yes, Lord Jesus, आश्चर्य है तेरे प्रभु, तेरे काम प्रभु. Yes, Lord Jesus, your ways are amazing, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus, help us, Lord Jesus, to follow you, Lord Jesus, without turning back, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus, help us, Lord, to keep you as the first preference in our lives, Lord. Is my reward and all of my devotion, and there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation, and this hope will never fail. Heaven is at home. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me, Lord. Christ is you are enough, Lord. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Shall all raise a hand and with low music and sing this verse? I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back.
cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Lord Jesus, help us, Lord, is not to turn back, Lord Jesus. Yes, Lord, help us, Lord, is to live in your identity, Lord, is not according to ourselves, Lord Jesus.
Yes, Lord Jesus. Thank you for your love, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Submit everything in your hands, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus, you are a friend, Lord Jesus. You are more closer than a brother, Lord Jesus. Lord Jesus. Because you are a hope, Lord Jesus. You are the faithful one, Lord Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus, you are the one. Jesus. Oh, Jesus. Friend forever. Let's sing Yeshu. 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 Oh, Yeshu. 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 Oh, Yeshu. Prabhu, you are a friend, Lord, forever, Lord Jesus. In you we find hope, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Help us, Lord Jesus, to look unto you, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Help us to live according to your identity, Lord Jesus, but not according to the identity of our failures, not according to the identity of our weakness, Lord Jesus, but help us, Lord Jesus, to live according to the identity of who you are, Lord Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Submit everything into your hands, Lord. Speak to our hearts, Lord Jesus.
In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Good morning, church. गुड मॉर्निंग चर्च। Welcome to this Sunday morning service. और आज की रविवार की सभा में आपका स्वागत है। So we have a greater expectation from the Lord. और हम बहुत ही अपेक्षा करते हैं परमेश्वर से आज की सुबह। So before we begin or get into the word, और शुरू होने से पहले या वचन में जाने से पहले so I have a couple of announcements with me. और मेरे पास कुछ सूचनाएं हैं। If you're watching us for the first and the second time, अगर आप पहली बार या दूसरी बार देख रहे हैं तो I would request you to please give your name and number in the comment box. तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपना नाम और अपना नंबर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, So that we can contact you and send some books to you. ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सके और आपको कुछ किताबें दे सके। And thank you so much and welcome. धन्यवाद और आपका स्वागत है। And the second announcement will be और दूसरी जो सूचनाएं है वो the Bible college class will be as per the schedule. बाइबल कॉलेज की जो क्लासेस है वो स्केड्यूल के अनुसार है And this will be happening on Zoom. और ये जो क्लासेस है जूम पे हो रही है And there is no changes in this timing. और टाइमिंग में कोई बदलावट नहीं है Okay, so that's all for the announcement. और यही सूचनाएं हैं। And the offering details will be reflecting on your screen. और जो भेंट के बारे में जो सूचनाएं है वो आपकी स्क्रीन पे रहेगी। If you want to give offering, please send it to our accounts. और अगर आपको ऑफरिंग देना है तो आप हमारे अकाउंट में दे सकते हैं। And if you have any prayer requests or any counseling you needed, please feel free to call our pastors. अगर आपको कुछ भी काउंसलिंग की या प्रार्थना की जरूरत है तो आप हमारे पास्टर को कॉल कर सकते हैं। So that's all for the announcement this morning. और आज के लिए इतनी ही सूचनाएं हैं। As you all know जैसे कि आप सब जानते हैं that Pastor Dharmesh father Suresh Bane, पास्टर धर्मेश के पिताजी सुरेश बाने he is no more here, वो यहाँ पे नहीं है, but he is with the Lord. वो परमेश्वर के साथ है। So keep his family in prayer. आप उनकी फैमिली को प्रार्थना में रख सकते हैं, Keep whole his family उनके पूरे परिवार के लिए for the comfort, और कंफर्ट के लिए, for the loss. जो उन्होंने खोया है उसके लिए। Okay, so we believe that uncle is in heaven हम विश्वास करते हैं अंकल स्वर्ग में है and he is with auntie as well as Jesus Christ. और वो आंटी के साथ भी और यीशु मसीह के साथ भी है। And thank you so much. धन्यवाद। And let's pray for the offering. और आइए भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we come to you. स्वर्गीय पिता, हम आपके पास आते हैं, Thank you so much. धन्यवाद करते हैं Bless the hands, Lord. और आशीषित करना उन हाथों को। We pray for Pastor Dharmesh and his whole family. हम पास्टर धर्मेश और उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। Just comfort, आप उन्हें परमेश्वर कंफर्ट करना, strengthen in this time, Lord. आप उन्हें मजबूत करना इस समय में। The family has lost. परिवार ने जो खोया है You will regain it, Lord Father. आप उन्हें फिर से देना। Thank you so much, Lord. धन्यवाद करते We हैं। believe that uncle is in heaven with you. हम विश्वास करते हैं कि अंकल आपके साथ स्वर्ग में He's in the है। perfect place, perfect environment. वो बहुत ही सही जगह पे और सही वातावरण में We है। are going to be there. हम भी एक दिन वहाँ पे रहेंगे। Thank you so much for this time, Lord. धन्यवाद करते हैं इस समय के The लिए। message which is going to come, speak to us. जो संदेश आने वाला है उससे आप मुझसे बातें करना। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. प्रार्थना करते हैं, आमीन। This is my bread and my hunger in
प्रार्थना करते हैं। सबको जय मसीह, है ना। आप सभी का स्वागत है इस रविवार की सभा में। So we welcome you in this Sunday morning service. Praise the Lord. So हम वचन पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। And before we go into the word, we will have a short word of prayer. प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। Father God, we thank you for this day that you have given to us, O Lord. आपके नाम को महिमा देते हुए हम इस सभा को शुरुआत करते हैं प्रभु। Father, we give glory to your name, O Lord. We start this meeting, O Lord, with giving glory to your name, O Lord. आपके सामर्थ के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें लीड कीजिए। Father, lead us through your power, O Lord. और हम सबको बुद्धिमत्ता दीजिए। हर एक के घरों में प्रभु आपका उपस्थिति के द्वारा बातें कीजिए। Father, and let your presence, O Lord, talk to each one of us who are sitting in our homes, O Lord. आपकी महिमा होने पाए इस सुबह में। Father, let your name be glorified, O Lord, this morning, O Lord. और खासकर हम प्रार्थना करते प्रभु कि आप लोगों को चंगाई भी दीजिए। And Father, we especially want to pray for healings, O Lord. धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। We ask this prayer in Jesus' name. आमीन। Amen. मत्ती का अध्याय 3 अध्याय खोलते हैं और वचन नंबर हम 13 से पढ़ेंगे। So we go to Matthew 3 and we will start with the 13th verse. Matthew 3:13. तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि तब यीशु गलील से नासरत के किनारे यूहन्ना के पास आया कि उससे बपतिस्मा ले, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और क्या तू मेरे पास आया है? Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? Jesus replied, let it. नंबर 15 में, Yes. परंतु यीशु ने उत्तर दिया, इस समय ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमारे लिए उचित है कि इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूर्ण करें। Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. तब उसने उसकी बात मान ली। Then John consented. लूका का अध्याय 4 और वचन नंबर 1। If we go to Luke 4 and the first verse, यहाँ पे लिखा है कि यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन से लौटा और आत्मा उसे जंगल में इधर उधर ले जाता रहा। Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about him spread through the whole countryside. वचन नंबर 2 में, वहां 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। And Satan, I read the wrong verse. I'll read it again. Jesus, full of Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the desert, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate, हाँ, इस हिस्से में, पहले हिस्से में जो हम देखते हैं कि मत्ती के किताब में, and as we see in the first portion, that is Matthew, कि यीशु मसीह की सेवकाई शुरू होने से पहले गलील के आसपास में आया वो। that before he started his ministry, he came to Galilee. तो यरदन नदी के पास में आता है। And he comes near Jordan River. और जहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा है। Where John the Baptist is baptizing people. लेकिन यहाँ पे जो मत्ती और लूका में जब हम देखते हैं कि दोनों किस प्रकार से शुरुआत करते हैं। And in Matthew and in Luke also we see both the beginnings. लूका जो शुरुआत करता है कि वहां पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है किस प्रकार से वो टेम्पटेशन से गुजरा, टेम्प्ट किया गया वो। And Luke starts with how Jesus was tempted. और उसके लिए भी की परीक्षा, ये पवित्र आत्मा उसको लेके गया वहां पे। And the Holy Spirit took him there. लेकिन मत्ती उसके बारे में यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में बात कर रहे हैं। And when Matthew talks about his baptism,
इसको इस प्रकार से मतलब ये पूरे सारांश को इस तरह से लेते हुए कह रहे हैं कि लूका ने यरदन नदी पार यीशु की सेवकाई के लिए मतलब लूका अपनी ओर से इस प्रकार रख रहा है कि यह एक अकाउंट ओपन कर रहा है मिनिस्ट्री के लिए। And in case of Luke, you can see that he is actually flagging off. He is showing that the ministry is being started. है ना, तो लूका वहां से शुरुआत कर रहे हैं। And that is where Luke starts at. और मत्ती में देखते हैं कि पहली बार जो सार्वजनिक रूप से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों से बपतिस्मा के लिए यीशु मसीह अनुरोध करते हैं। And in Matthew we see that publicly Jesus is asking to be baptized by John. तो यहाँ पे जब यूहन्ना बपतिस्मा देने के पास प्रभु यीशु मसीह आए, And when he came to John the Baptist, Jesus Christ came to him, कि मुझे तेरे से बपतिस्मा लेना है, that I need to be baptized by you. लेकिन यूहन्ना वहां पे कहता है कि मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए। But John the Baptist tells him that I should be baptized you. लेकिन वहां पे प्रभु यीशु मसीह का जो उत्तर है वहां पे, But what does Jesus say there? Well, how does he answer? और उत्तर ये है कि बहुत अद्भुत तरीके का लाइक वहां पे जो कन्वर्सेशन है बहुत अच्छा लगा जब मैं पढ़ रहा था। And as I was reading, I really loved the conversation there. तो वहां पे यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि इस समय ऐसा ही होने दे। And he said, let it be like this at this time. और आगे उन्होंने कहा उस पंक्ति में कि हम क्योंकि हमारे लिए उचित है कि इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूर्ण करें। Because it is right for us that the whole righteousness may be fulfilled. So यहाँ जो मुख्य हिस्सा है कि सारी धार्मिकता को पूर्ण करें। So to fulfill all righteousness is the main portion here. है ना, तो इस हिस्से पे हम आएंगे। So we will come back to this portion. So जो एक इस तरह से कि लाइक बपतिस्मा पाप के कारण पश्चाताप और मृत्यु का एक चिन्ह है। And as we know that baptism is a sign of death because of sin. है ना, तो बपतिस्मा लेने से पाप की क्षमा नहीं होती। It's not because we take baptism that we get or our sins get wiped off. So बपतिस्मा लेने से पाप की क्षमा नहीं होती, तो प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं कि उस धार्मिकता सारी धार्मिकता को पूर्ण होने दे? So then why is Jesus saying that let all righteousness be fulfilled? और ये मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से ये सेंटेंस है। And it's a beautiful sentence. कि बपतिस्मा लेने वाला जो व्यक्ति है जीवन की पूर्ण मतलब विधि का जो फेयरवेल कर रहा है। And in a way he is saying or he is doing a farewell or he is completing what is expected of him. तो जिस प्रकार से कॉलेज में एक है ना लाइक उनका क्लास खत्म होता है और फिर दिन अगला क्लास में जाने से पहले फेयरवेल होता है, खुशी होती है कि नेक्स्ट आगे जाना है। Very similar to as when we graduate from a school or a college, we get a farewell and there's a happiness inside that we are moving ahead. तो वही यहाँ पे कि बपतिस्मा लेने वाला जो व्यक्ति है जीवन की पूर्ण हिस्से में जाने के लिए फेयरवेल कर रहा है और यह कि वो बिल्कुल नए अस्तित्व में प्रवेश कर रहा है। And this shows here that he is actually entering a very new kind of existence. है ना, कि वो एक नए हिस्से में प्रवेश करने वाला है, उसका उत्सव मना रहे। And it's almost like a celebration of entering a new phase of his life. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब सोचते हैं हम, But when we think of Jesus Christ, तो यीशु मसीह की जैसे बपतिस्मा होता है, स्वर्ग से आवाज आती है। and we know that when he was given a baptism, there was a voice from heaven. कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे सुनो, मैं इससे प्रसन्न हूँ। This is my son whom I love, with him I am well pleased. So यहाँ पे विरोधाभास के जैसा लगता है कि पिता कहता है कि मैं इससे प्रसन्न हूँ। And it seems like a paradox because the father says that I am pleased with him. लेकिन उससे जस बात क्या होता है कि यीशु मसीह की परीक्षा का हिस्सा होता है।
And just after that, we can see that Jesus is now tempted in the desert. कि पिता कहता है कि मैं अपने पुत्र से प्रसन्न हूँ, God says that I am well pleased with my son. लेकिन पवित्र आत्मा जो जंगल में लेके जाता है परीक्षा के लिए, But the Holy Spirit takes him to the desert for testing or temptation. और यहीं पे एक विरोधाभास के जैसा लगता है. And this is where it seems like a paradox. सो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर का पुत्र थे और हैं भी. And as we know that Jesus is the Son of God or was the Son of God, सो उसे पश्चाताप की क्या आवश्यकता थी? so why did he have to repent? What did he have to repent of? और यह एक नए नियम की एक गवाही थी जो दुश्मनों के लिए घोषणा थी कि सारे पापों से वो निर्दोष था. So it was actually a declaration, it was actually a testimony to his enemies that he was sinless. और यही एक घोषणा थी सारे दुश्मनों के लिए. And this was a declaration to all his enemies. शैतान और दुष्टात्माओं के लिए. And it was for Satan and his followers. सो इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह को पाप से पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं थी. And as we know that Jesus didn't have to repent of his sins. क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है. Because he is the Son of God. तो लेकिन देन आगे जब हम मतलब इस हिस्से में पहुंचते हैं कि क्यों जो एक अधिनियम में अन्य सभी का पालन करना चाहिए, जो अधिनियम रूप से अधर्म का एक बयान था. And to fulfill all righteousness seems to be like मतलब वो धार्मिकता का सारी धार्मिकता को इन हिस्सों का क्यों यीशु मसीह कह रहा है? Why is he saying that let all righteousness be fulfilled? सो कहने का मतलब कि परमेश्वर ने जो नियम ठहराए थे वो सारे नियम एक्ट जो हम कहते हैं ना धारा एक्ट, उन एक्ट के अनुसार वो सारा चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया. That means he was fulfilling the law to the dot. सो फिर अगला हिस्सा ये आता है कि क्यों उसे पुराने जीवन में मरना चाहिए और एक नए जीवन में जी उठना चाहिए. And why was it necessary that he dies of his earlier life and then rise up again for the new one? है ना. तो क्या प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे देखा जाए तो यीशु मसीह को पश्चाताप करने की जरूरत नहीं थी. As we know that Jesus didn't have to repent of anything. क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब शुरुआत करता है मिनिस्ट्री की तो क्या करता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है. Because when John the Baptist started his ministry, his declaration or his invitation was that repent of your sins because God's kingdom is यीशु मसीह भी सेम वैसे ही शुरुआत करते हैं मिनिस्ट्री का. And this is how Jesus starts the ministry. सो यीशु मसीह का जो एक सेंटेंस बहुत मतलब कि उन्होंने कहा कि इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूर्ण करें. And one sentence which he said was that let's fulfill all righteousness. सो सारी धार्मिकता को पूर्ण करने के लिए यीशु मसीह इस हिस्से को याद दिला रहे. And he's just reminding them of that portion. और हमारे लिए भी वो अच्छा है कि पौलुस उस चीजों को किस प्रकार से कहते हैं. And for us also it's very good because how Paul tells about this. Let's see. और रोमियो का 6 अध्याय में जब देखते हैं हम, when we go to Romans 6 here, और वचन नंबर 3 में, Romans 6:3, वहां पे पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए, बपतिस्मा के द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी हुए. Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? सो पौलुस कह रहा है कि हम बपतिस्मा के द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी हुए. So Paul is saying that we are baptized into his death through this.
और पौलुस ने इस बात को भी है ना रखा कि जो धार्मिकता मिलने के लिए जो धर्मीपन को स्वीकारने के लिए विश्वास की जरूरत पड़ती है। And he also declared that to accept righteousness, you require faith. सो उसी धार्मिकता के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसमें बपतिस्मा लिया। And that was the reason Jesus took baptism. सो उस धार्मिकता जो पौलुस आगे बात कर रहा है कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, And it's the same righteousness which Paul is talking about, that through faith, by faith we are declared righteous. तो यहाँ पे उसी हिस्से को लेकर प्रभु यीशु मसीह सेम उसी चीज को कह रहे हैं कि वो जो धार्मिकता का जो हिस्सा है उसको पूर्ण होने दे। And Jesus is actually taking the same portion and he is telling that let all righteousness be fulfilled. सो हमारे लिए भी हम सबको पता है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उसके द्वारा धर्मी नहीं ठहराए जाते हैं, लेकिन विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। And all of us know very well that when we take baptism, that doesn't make us righteous. It's the faith which makes us righteous. है ना, तो बपतिस्मा मतलब इस हिस्से की बपतिस्मा पाप के कारण पश्चाताप और मृत्यु का एक चिन्ह है। Because baptism is a sign of death because of sin. सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस चीज को कह रहे हैं कि बपतिस्मा हमें बहुत जरूरी है। And that is why Jesus is telling that baptism is necessary for us. और वो उसके द्वारा वो धार्मिकता का जो सारा हिस्सा है पूर्ण होगा जो विश्वास के द्वारा मिलता है। And that way the whole portion would be fulfilled, or the righteousness will be fulfilled, which comes only through faith. सो लेकिन यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है उसके जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा के लिए अनुरोध किया, But when Jesus requested John the Baptist for the baptism, सो यूहन्ना के लिए सरप्राइज जैसा यूहन्ना एक हिसाब से हिंदी में जो शब्द होता है ना हक्का बक्का हो जाना है। so he is taken aback. John the Baptist is taken aback. कि क्यों हक्का बक्का हो गया? क्योंकि यूहन्ना पहचान गया कि कौन है ये। Because he recognized who this person is. सो वो यीशु के व्यक्तित्व और बपतिस्मा की इच्छा को उसने समेट नहीं सका। And he could not gather, he could not understand the desire to be baptized by Jesus. कि अगर देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह का जो ईश्वरत्व है और व्यक्तित्व है उन हिस्सों को रख कर एक साइड में और दूसरे साइड में कि बपतिस्मा लेने की जो हिस्से को उस हिस्से से सरप्राइज था यूहन्ना। Because he knew Jesus's divinity, so it really surprised him that he was asking for a baptism. और इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है कि मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए। And that is why he says that it should be you who should baptize me. सो अगले हिस्से में हम पहुंचते हैं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, And the next portion is when Jesus came to this world. तो यीशु मसीह ने मांस और लहू की दुनिया में जब प्रवेश किया, And when he entered this world of flesh and blood, तो उसे पापी होने की आवश्यकता नहीं थी। so he didn't require to be a sinner, लेकिन वो हमारे लिए पाप बन गया। but he became sin for us. दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय में। If we read 2 Corinthians 5th chapter, लेकिन यह आवश्यकता थी कि वो मनुष्य की स्थिति में साझा करे। but this was required that he will have a partnership in the condition of humankind. और वो हमारे साथ वो साझा किया, हमारे पाप में साझा किया वो। So he took partnership in our sin, हमारी समानता में बदल गया वो। and he was molded in our form in a way. और हमारी समानता में बदल कर हमारी समानता में बनकर हमारे लिए वो सारा चीजें करना चाहा जो हम नहीं कर सकते थे। And he wanted to do everything which we couldn't do ourselves. और वही चीजें यीशु मसीह ने किया, और उसी चीज को यूहन्ना अध्याय 1 और वचन नंबर 14 में जब कहता है, And this is what John speaks about in 1:14.
और वो कहता है कि वचन देहधारी हुआ, that the word became flesh. और देहधारी हुआ तो पहली घोषणा में उन्होंने मनुष्य के बीच में अपनी स्थिति को क्या किया, अपनी स्थिति को यह कहते हुए लिया कि हमारे लिए सारी धार्मिकता को पूर्ण रहने के लिए, मतलब पूर्ण होना जरूरी है। And he declared that all righteousness should be fulfilled. और यूहन्ना उसी चीज को कह रहा है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। And that is what he is telling. The word became flesh and made his dwelling among us. और वो हमारे बीच में हमारी स्थिति में आ गया। And he came into our situation or into our condition. अब वो हमारे दुखों, हमारे दर्द को समझने लगा वो। And he started understanding our pain and our sorrow. लेकिन उससे पहले हम वो सब कुछ हम सारी चीजों को जानता था वो। But before that also he knew everything. लेकिन बपतिस्मा के बाद देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा से गुजरता है, टेम्पटेशन से गुजरता है। But after his baptism we see that Jesus goes through temptation. टेम्पटेशन में मैं सोच रहा था कि पिता का भी रोल है और पवित्र आत्मा का भी रोल है। And during this temptation or testing we see that the Father also has a role and the Holy Spirit also has a role. लेकिन पिता अपने पुत्र की परीक्षा नहीं करता है। But the Father doesn't tempt his son or doesn't test his son. और एक हिसाब से ये इस प्रकार से है कि किसी चीज को जब तक परखा ना जाए तो उसकी क्वालिटी इंसानी हिसाब से समझने के लिए कठिन होता है कि वो कितना प्योर है। And from a human perspective, it's difficult for us to understand that without testing, how can we prove that something is pure? और वही चीज पिता और पवित्र आत्मा दिखा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा। And this is what the Father and the Holy Spirit are showing through Jesus. और हमें भी पता है कि हम भी जब ऐसे बहुत सारे हिस्सों में आते हैं तो हमारे लिए भी यही चीजें हम गुजरना पड़ता है। And we also know that many times we also enter into something similar or in temptations to prove. और हमारे लाइफ में इस तरह से कि हर एक उस हिस्से में परखा जाना बहुत ही अनिवार्य है। And we are also tested in all areas of our life. हमें विश्वास में हमारा परखा जाना बहुत जरूरी होता है। Our faith has to be tested. और हमारा जो परमेश्वर के साथ चाल है उसमें भी परखा जाना जरूरी होता है। Our walk with God is tested, even that is very important. जो कि रोजमर्रा के लाइफ में वो चीजें होती है। Which happen on a daily basis. जब ये चीजें नहीं होगी तो हम परमेश्वर के उन चीजों को कैसे समझ पाएंगे जो परमेश्वर ने ऑलरेडी किया है। So how would we understand if we do not undergo all this, go through all this? How would we understand God? और वही एक हिस्सा है कि बपतिस्मा का जो वो पाप करने वाले के लिए मृत्यु के जैसा हिस्सा होता है कि पौलुस कहता है कि हम उसके मृत्यु में सहभागी हो गए। And we had fellowship in his death. That is what Matthew says. And it happens only after that. है ना। और बपतिस्मा एक हिसाब से वही है कि उसकी मृत्यु में सहभागी हो जाते हैं। So we fellowship in his death. That is what baptism is all about. यही है कि जब तक हम उसके मृत्यु में सहभागी नहीं होते तब तक हम उसके पुनरुत्थान में भी सहभागी नहीं हो सकते। Until we do not become one with him in his death, we will not be one with him in his resurrection. और यही सबसे बड़ा मुख्य हिस्सा है हर एक विश्वासी के लिए कि जब वो परखा जाता है तो उस परखे जाने के उन हिस्सों में ज्यादा अपने उस हिस्से में परखे जाने के हिस्सों में अपने क्या बोल सकते हैं कि निराशा में नहीं होना है। So we should not become depressed. We shouldn't become disappointed, discouraged when we are being tested. कि जब हम हमारे लाइफ में परखने वाला हिस्सा है तो हमें निरुत्साहित नहीं होना है। So we shouldn't be discouraged when a testing comes in our life. क्योंकि उसके बाद मृत्यु के बाद पुनरुत्थान वाले हिस्से में हम प्रवेश करते हैं। Because after death we enter a resurrected life or life of resurrection.
और उस पुनरुत्थान के जीवन में अद्भुत चीजें होती है कि हम उसके साथ सहभागिता करते हैं। And amazing things happen in this resurrected life when we have fellowship with him. है ना। तो अगला हिस्सा इस प्रकार से कि जिस तरह पाप करने वाले को मौत का फैसला करना चाहिए और परमेश्वर के नए जीवन का अनुभव करना चाहिए, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह को अपने क्लेश और आनंद में मनुष्य के साथ होना पड़ा। And that is why Jesus had to, in a way, identify with human sorrow, human grief. है ना। सो यीशु मसीह का जो बपतिस्मा उसका स्वयं का प्रतीकात्मक पूर्वाभास था। So it was actually, in a way, he was showing that he understands human sorrow and grief and things like that. So it was a symbolic gesture for that. या सो जंगल में जाने का जो मार्ग सार्वजनिक कमिटमेंट और मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ शुरू हुआ। So the testing in the desert started with his public ministry or with a declaration publicly. है ना। तो मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ शुरू हुआ। So it started with death and resurrection. है ना। तो जंगल में जो टेम्पटेशन था यीशु मसीह का, तो उस हिस्से में दोनों हिस्सा था, मृत्यु और पुनरुत्थान दोनों था। And in his testing he had both death as well as resurrection. और शैतान इसीलिए तो आता है कि यीशु मसीह के पास कि जब यीशु मसीह भूखे होते हैं तो क्या बात करता है कि टेस्ट करता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना दे। And that is where Satan enters, and he says that if you are God, make these stones into bread. है ना। और टेस्ट करता है। And he tests him. लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पे लाइक उसके साथ उस तरह से सहभागी नहीं होते हैं। But he doesn't enter into fellowship with him. He doesn't agree with him. लेकिन प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ सहभागिता कर रहे हैं। But he was having a fellowship with the Father. सो हमारे लिए भी एक लेसन है कि जब परीक्षा या टेस्ट हो तो हमें पिता के साथ सहभागिता में जुड़े रहना है। So even for us, it's a lesson that when we are going through testings, we need to be connected to the Father. उसे हमें पिता के पास से और पुत्र के पास से हमें उस पुनरुत्थान का जो हिस्सा हर दिन उस सहभागिता में स्वीकार करने की जरूरत है। So we have to live in fellowship and agree with him in his resurrected life. So प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई का बहुत अद्भुत हिस्सा है। And it's an amazing part of Jesus's ministry. सो लूका का अध्याय 19 और वचन नंबर 10 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनको उद्धार करने आए। And in Luke 19:10 he says that he came, the Son of Man came to look for and rescue the lost. सो अगर वो खोए हुए को ढूंढने आए, so if he had come to look for the lost or to save the lost, तो उनको वहां पे जाना पड़ेगा जहां पे मनुष्य खोया हुआ है। so then he'll have to go where he will find people who are lost. सो मनुष्य सिर्फ इस संसार में ही नहीं खोया हुआ है। And a human being or man is not just lost in this world, तो मनुष्य बहुत सारी चीजों में खोया हुआ है। but he is lost in so many things. सो कई बार अपने विचारधाराओं में खोया हुआ होता है। Many a times he is lost in his thought process. और कई बार अपनी बुद्धिमत्ता में खोया हुआ होता है। And some may be lost in their own intelligence or wisdom. और अपने कर्मों में खोया हुआ होता है। Many of them might be lost in their good works. अपने है ना रिलीजियस उन हिस्सों में खोया हुआ होता है। He might be just lost in fulfilling the religious things. और कई बार मनुष्य लाइक हमको पता है कि अपनी फिलॉसफी में खोया हुआ होता है। Many a times a human being can be lost in his own philosophy. तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह को वहां पे जाना पड़ा कि जहां पे मनुष्य खोया हुआ होता है। But Jesus Christ had to go where
where a human being or a man is lost. है ना। तो इस प्रकार से कि अगर वो खोए हुओं को ढूंढने बचाने आया तो उसे वहां जाना पड़ा जहां मनुष्य क्या बोलते हैं खोया हुआ है। So he had to enter those places where, or the place where a man is lost, because he had come to seek and save the lost. तो यहाँ पे इस प्रकार से है कि एक हिस्सा इस प्रकार से है कि एक जो तैराकी होता है, It's somewhat like swimming. तो जब वो तैराकी पानी में किसी व्यक्ति को, डूबने वाले व्यक्ति को बचाने जाता है, So when a swimmer actually goes or leaps into or jumps into water to save or rescue someone, तो उसको डूबने की जरूरत नहीं होती है, so he doesn't have to actually drown. लेकिन उसे बचाने के लिए उसे पानी में कूदना पड़ता है, But he has to jump into water to save that person. है ना। तो जब वो बचाने जाता है तो उसको डूबने की जरूरत नहीं पड़ती है, So he doesn't have to drown. लेकिन उसको बचाने के लिए उस पानी में घुसना पड़ता है उसको, But he has to enter that water so that he can save that person. और तब वो बचाता है उसको। And that is how he saves him. सो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वैसे ही किया कि हमें देखा और वो इस संसार में आया वो। And in the same way, Jesus, when he saw us, he entered this world. और जब वो संसार में आया तो सारी उन धार्मिकता को जो पिता ने ठहराया था वो सारे चीजों को उसने क्या किया, अपनाया। And everything, when he entered the world, everything which God the Father had ordained, he completed or fulfilled. और उन्होंने वो भी अपनाया जो मनुष्य अपने जीवन के उन हिस्सों में जा रहे थे। And he also accepted the human condition. सो अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से अपनी मिनिस्ट्री करते हैं। And this is, we see that this is how he starts his ministry or does his ministry. तो प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई थी वो एक कमिटमेंट था। So his ministry was a commitment. और वो कमिटमेंट ये था कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। That the Son of Man came to seek and to save what was lost. और प्रभु यीशु मसीह ने वही किया। और जब इस तरह से हम इसको इस प्रकार से एक हिस्सा सोच रहा था मैं, And I was just thinking of a thought. तो जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की तो क्या किया कि वो एक हिसाब से कि मिनिस्ट्री में अपने आप को सौंप दिया। So in a way, he surrendered himself or he gave himself up to the ministry. और इस वजह से प्रभु यीशु मसीह उस जगह में गए जहां पे मनुष्य खोया हुआ है। And that is why he entered those places or the place where human or a man is lost. है ना। और परमेश्वर ने हर एक उस व्यक्ति को वो चीजें दिखाया जो मनुष्य है और वो चीजें दिखाया जो परमेश्वर है। And he showed those things which are from man and things which are from God. है ना। तो रोमियो का अध्याय 8 वचन नंबर 14 में कहता है कि क्योंकि वे सब जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं। So as we see in Romans 8, which verse, Pastor? 8:14, रोमियो 8:14। 8:14. Okay, so Romans 8:14. Give me a second, please. Sorry. When the okay, 1 minute. Okay, so I'll just yeah. So I could just translate it. 8:14. Anyway, I have found it. So because those who are led by the Spirit of God are sons of God. है ना। तो लेकिन यहाँ पे कैसा है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा उस जंगल में लेके जाएंगे। But then Jesus was taken into the desert by the Holy Spirit. तो ये हिस्सा भी एक प्रकार से इस चीज को प्रूफ करता है कि वो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर का पुत्र है। And this also proves that he is the Son of God. और हमारे लिए भी वही है कि हमें भी पवित्र आत्मा में चलना है। और जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं
तो वो एक हिस्सा को हम हमारे जीवन में पूरा होता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। And this also proves in our life that when we are led by the Spirit, we are the sons of God. सो पवित्र आत्मा में जब हम चलते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम चलाए जाते हैं, And when we are led by the Holy Spirit, सो हमारे लाइफ में वो धार्मिकता का कार्य पूरा होता है। so the work of righteousness is fulfilled in our life. हम धर्मी ठहराए गए विश्वास के द्वारा, We were declared righteousness by faith, लेकिन हमारे जीवन में धार्मिकता का कार्य तब पूरा होता है जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। but the work of righteousness is completed in our lives when we are led by the Holy Spirit. तब हम परमेश्वर की उन हिस्सों को समझ भी पाते हैं जो परमेश्वर चाहता है। And then we are able to understand what God thinks about a certain thing, or those areas we think similar to God. है ना, कि हम परमेश्वर के उन हिस्सों को अपने जीवन में अनुभव भी कर पाते हैं। And we are able to experience God in those areas. सो मत्ती का अध्याय 3 में और वचन नंबर 16-17 में, And if we see 16 and 17, Matthew 3, 16 and 17, और लूका का अध्याय 3:22, and Luke 3:22, सो इस हिस्से में हम क्या देखते हैं कि स्वर्ग से पिता की आवाज आती है कि मैं अपने पुत्र से प्रसन्न हूं। and we can very clearly see that a voice from heaven said, "This is my son whom I love and I am well pleased with." जब वहां पे ये आवाज आई, And when this voice came, सो यहूदी लोग इस आवाज से अनजान नहीं थे, and Jewish people were not unaware of, or they were familiar with this voice. है ना, कि वो परिचित थे। वो They knew this voice. क्यों परिचित थे? क्योंकि मूसा भी उस आवाज को सुना निर्गमन के अध्याय 3 में, And they recognized it because Moses had also heard it in Exodus. और पहला राजा में हम 19वें अध्याय में देखते हैं कि वैसे ही एलिया ने भी आवाज सुनी। And 1 King 19 we see that Elijah also heard this voice from heaven. और जब आवाज सुना उन्होंने, तो परमेश्वर की आवाज सुनकर उन्होंने क्या किया कि परमेश्वर ने जो धार्मिकता के कार्य लायक प्रकट करना चाहा था, तब वो प्रकट कर पाए। And then only they could reveal God's righteousness and the works God had done in righteousness. They could reveal it to others. सो अगर वो परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते, If they wouldn't have heard the voice of God, तब वो परमेश्वर के मर्जी को कैसे समझ पाते? how would have they understood His will? सो उन्होंने सुना पवित्र आत्मा के द्वारा, They heard through the Holy Spirit, और वो उस तरीके से आज्ञा पालन किया, and then they obeyed according to that, और वो परमेश्वर की महिमा किए। and they glorified God. सो हम मसीही लोगों को भी पता है And we believers also know this, कि परमेश्वर की आवाज इन वचनों के द्वारा आती है। that through His word we can hear His voice. हम भी बहुत अच्छी तरीके से इस बात से परिचित हैं, And we are also familiar with this thing. लेकिन हमारे जीवन में वो वाला हिस्सा होता है कि हम उसकी आवाज को पहचान नहीं पाते, But many a times we are not able to recognize His voice. क्योंकि उस समय हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलाए चलते, Because we are not being led, we are not following the Holy Spirit. और इस वजह से हम उस आवाजों को नहीं सुन पाते हैं। And that's the reason many a times we are not able to hear those voices or His voice. है ना, कि जब हम एवरी संडे एवरी वेडनेसडे हम उन वचनों को सुनते हैं, तो हम परिचित होते हैं, उससे पहले हम परिचित हैं कि परमेश्वर की आवाज है ये, And we recognize and we know that it is God's voice, लेकिन हम क्या है कि हम नहीं सुन पाते हैं। but we are not able to hear. तो विश्वासी होने के बाद भी हम कई बार अपने उन चीजों में खोए हुए होते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम खोए रहें उनमें। And even after becoming a believer, many a times we are lost in those things in which God doesn't want us to be lost. और जब हम खोए हुए होते हैं तो उसके पुनरुत्थान का जो हिस्सा को हम नहीं जान पाते हैं।
And when we are lost this way, we cannot understand his resurrection. हम सिर्फ उसके मृत्यु वाले हिस्से को ही जान पाते हैं. We just know the portion or the side of his death. लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चलते तो पुनरुत्थान के जीवन को हम नहीं समझ पाते हैं. And when we are not being led or we are not following the Spirit, we don't understand the resurrected life. क्योंकि हम बहुत सारे चीजों में खोए हुए होते हैं. Because we are lost in so many things. लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री जो है आज भी हमारे लिए कार्यरत है. But Jesus' ministry is working for us even today. पहला ये हिस्सा कि जब हम पाप में खोए हुए थे तो उसने हमें ढूंढकर पाप से छुटकारा दिया. The first thing was that he lifted us out of our sins and redeemed us from our sins. लेकिन पाप से छुटकारा पाकर जब हम जीवन के उन हिस्सों में खोए हुए होते हैं तो परमेश्वर हमें वहां से भी ढूंढ कर निकालता है. But many times, even after being saved, if we are lost in those things of the world, he pulls us out of that also. और ये हिस्सा देखा जाए तो परमेश्वर का एक प्रगतिशील वाला हिस्सा है कि वो अभी भी कर रहा है. And this is something which is progressive, which he is still doing. और कई बार जब विश्वासी इस बात को बोल सकता है कि मैं अभी खोया नहीं हूं, मैं ठीक हूं. Many times a believer can say, no, I am not lost, I am fine. So परमेश्वर के उन प्रावधान को क्या करता है, इनकार कर देता है. So he refuses the provisions of God, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना का 8वें अध्याय में कहा, which Jesus said in John 8. 8वें अध्याय में यहूदी लोगों से बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. And he's talking to the Jewish people and he's telling that if you know the truth will free you. लेकिन वहां पे बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा कि हमें स्वतंत्र होने की जरूरत नहीं, हम तो ऑलरेडी स्वतंत्र हैं. But there were many people there who said we don't have to become free, we are already free. यीशु मसीह ना वहां पे कह रहे हैं कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. And it says that if you know the truth will set you free. So वहां पे लोग थे, वो कह रहे थे कि हम खोए हुए नहीं हैं. And there were people who were saying that we are not lost. लेकिन नीति वचन का अध्याय 1 और वचन नंबर 23 में कहता है पंक्ति, But in Proverbs, can I be heard? अध्याय 1 वचन नंबर 23. Okay, Proverbs 1:23 says, वहां पे इस तरह से कहता है कि यदि तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराते तो मैं अपनी आत्मा तुम पर उड़ेलती, मैं तुम पर अपने वचन प्रकट करती. And if you would have heard my rebuke, and I would have poured my wisdom on you. That is what is said. और वचन नंबर 24 में लिखा है कि जबकि मैंने तुझे पुकारा और तुमने सुनने से इनकार किया. And when I called you, you refused to listen to me. और मैंने अपना हाथ बढ़ाया परंतु किसी ने भी ध्यान नहीं दिया. And I gave you my hand, but no one paid any attention to it. है ना. सो इस दुनिया में बहुत सारे मनुष्य खोए हुए हैं. So there are many people who are lost in this world. लेकिन परमेश्वर जब उनकी ओर हाथ बढ़ाता है, but when God tries to bring them in, सो मनुष्य ध्यान देने के बजाय उन चीजों में खोया हुआ रहता है. but a man is lost in what he is doing maybe, और वो परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दे पाता है. and he is not able to listen to God. लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं, वचन यहाँ पे जो 23 से बोलता है कि मैं तुम मेरी डांट सुनकर मन ही नहीं फिराते हो. And it says that if you had responded to my rebuke, I would have poured out my heart to you. है ना. और वहां पे वचन कहता है कि तुम पर अपने वचन कैसे प्रकट करेगा जब तक तुम अपने मन ही नहीं फिराओगे. And how will he show his word to you if you do not change your heart? परमेश्वर हमारे लिए इसीलिए तो इस दुनिया में आया कि अपना वचन प्रकट करे. That is the reason he came to this world, so that he will reveal his word to us. और अपनी योजना को हमारे जीवन में प्रकट करे. And to reveal his plan in our lives.
और उस पुनरुत्थान के जीवन को हर दिन रोजमर्रा के जीवन में प्रकट करें, and to reveal the resurrected life in his daily living. और पुनरुत्थान के जीवन का सामर्थ्य भी हमारे अंदर दे। And he gave that strength or the power to live that resurrected life also in us. यीशु मसीह यही बात कहना चाह रहे थे कि वो सारी धार्मिकता को पूर्ण करने दे। And that is what he was trying to say, that he was completing the whole righteousness, all of righteousness. So हम इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि परमेश्वर की जो सारी धार्मिकता का हिस्सा है प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। And so we come to this conclusion that God's complete righteousness, all his righteousness was fulfilled in Christ. और हमारे लिए आज वो अपना ग्रेस दिया है। He has given us his grace for us. और हम उसके ग्रेस के द्वारा ही उसके पुनरुत्थान के जीवन को समझ पाते हैं। And only through his grace we are able to understand the resurrected life. और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हम समझ पाते हैं। And we are able to understand through his Holy Spirit. है ना कि हम क्या है कि वहां पे आते हैं लाइक उस अनुग्रह जो परमेश्वर जो भी चीजें करता है कि हमें पता है कि जो भी परमेश्वर करता है वो अपने अनुग्रह के द्वारा ही करता है। And as we know that whatever God does, he does it through his grace only. So लेकिन उस प्रोसेस पे हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने की बहुत ही आवश्यकता है ताकि हम उन चीजों को समझ सकें। But in this process, it is so important that we are led by the Spirit, जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, which God had done for us. और आज भी जब हम परमेश्वर की उस आवाज को सुनते हैं, And even today when we hear his voice, कि जो आवाज अपने पुत्र को उसने दिया, the voice which he gave to his son, जो आवाज उसने मूसा को दिया, the voice which he gave to Moses, जो आवाज उसने एलिया को दिया, the voice which he talked with Elijah, जिस आवाज में उसने दानियल से बात किया, and the same voice he talked to Daniel with, और जिस आवाज में उसने अब्राहम से बात किया, and with the same voice he talked to Abraham, और वैसे ही उन्हीं आवाजों में परमेश्वर हमसे भी बात करता है। and in the same voice he talks to us also. और वो आवाज ये उसकी वचन के द्वारा आती है। And this voice we can hear in his word. और उसकी आवाज वहां जाती है जहां हम खोए हुए होते हैं। And his voice reaches the places where we are lost. और वहां पे पवित्र आत्मा क्या करता है कि देखो तुम इस हिस्से में खोए हुए हो, हमको क्या करता है, निरुत्तर करता है। And this is where the Holy Spirit convicts us and makes us realize that we are lost in that specific area. और हम वहां पे रिसीव करते हैं, परमेश्वर के साथ सहमत हो जाते हैं। And that is where we receive that from him and we agree with God there. और पवित्र आत्मा के साथ भी सहमत हो जाते हैं। And we agree with the Holy Spirit also. और फिर से हम परमेश्वर की आवाज को, उस आवाज को सुनते हैं। And once again we hear God's voice. और उस पुनरुत्थान के जीवन को अनुभव करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। And then we move ahead with the resurrection life. So आमीन। Amen. So प्रार्थना करते हैं। Let's pray. प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपने जो हमारे लिए किया प्रभु। Father God, we thank you for what you have done for us, O Lord. प्रभु हम जिस जगह में खोए हुए थे प्रभु, आप हमारे लिए उस जगह पे आए हमें बचाने के लिए प्रभु। And Father, the place where we were lost, you came to that specific place to save us, O Lord. परमेश्वर आप अपने मिनिस्ट्री में इस तरीके से आप समर्पित थे। Father, you were dedicated and surrendered to your ministry. कि आपने हमें उस स्थान पर बचाने के लिए आए प्रभु। That you came to that very place, O Lord, to save us. धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। We thank you, Jesus Christ. आपको महिमा देते हैं, आपने जो हमारे लिए सारा चीजें की है प्रभु। And we thank you and we glorify you for all the things which you have done for us, O Lord. हमें हेल्प कीजिए कि हम आपकी उस आवाज को सुनते हुए चलें। Help us to listen to your voice and walk according to that. आपके उस पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाएं,
so that we'll be led by your Holy Spirit, और हम आपके उस पुनरुत्थान के जीवन को भी अनुभव कर सके परमेश्वर, and so that we'll be able to experience the resurrected life, O Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी इन वचनों के लिए जो आपने दिए इस बाइबल में रखे हैं परमेश्वर, लाइक इन सारे वचनों के लिए प्रभु। And we thank you for the words of the word you have kept in this Bible, O Lord. कि आपने जो हमें बाइबल दिया है, आपके वादे दिए हैं प्रभु। You have given us the Bible, you have given us your promises. आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है। You have given us the Holy Spirit. धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। We thank you, O Lord. ओ पवित्र आत्मा, हम आपको भी धन्यवाद करते हैं। And Holy Spirit, we thank you also. प्रभु आपको महिमा देते हैं इस समय इन सारी चीजों के लिए। Lord, we give you glory for all these things at this moment, O Lord. खासकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो लोग बीमार हैं परमेश्वर उनके जीवन में छुओ और प्रभु चंगाई दो परमेश्वर। We especially want to pray for the sick, O Lord. Touch them and heal them, O Lord. खासकर ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो इस कोरोना के उस लॉकडाउन में प्रभु बहुत सारे लोग भटके हुए हैं, खोए हुए हैं प्रभु, वहां पे वो आपकी आवाज सुन सके और उद्धार पाए प्रभु। And we pray that especially during this corona time, O Lord, people who are lost will be able to hear your voice, O Lord, and will be saved, O Lord. प्रभु हम मांगते हैं परमेश्वर उन जीवन लोगों के जीवन से बातें कीजिए प्रभु, And talk to their lives, O Lord. प्रभु हम मांगते हैं परमेश्वर कि लोग जो भटके हुए हैं प्रभु, बहुत सारे परेशान लोग हैं परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं लेकिन आप उन्हें मदद कीजिए प्रभु। Father, they are going so much, they are lost, but they are going through so much of trouble also, O Lord. Father, help them, O Lord. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। We thank you, Lord. खासकर प्रार्थना करते पास्टर धर्मेश की फैमिली के लिए प्रभु, उन्हें आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा प्रभु आप जो सांत्वना देना प्रभु। Father, we especially want to pray for Pastor Dharmesh and his family, O Lord. Father, comfort them through your Holy Spirit and your love, O Lord. प्रभु जो हम उनके हृदयों में और बोया गया आपका वचन प्रभु, उन वचनों के द्वारा प्रभु उन्हें दृढ़ करना प्रभु। Father, make them firm, O Lord, through the word which you have planted in their minds and hearts, O Lord. आप उन्हें शांति देना परमेश्वर। Father, you give them peace, O Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। We thank you, Lord. यदि आप हमारे साथ इस चैनल में जुड़े हुए हैं या वचन सुन रहे हैं या सुने हैं पहले भी, If you joined us on this transmission of program, और यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे हैं, and if you haven't accepted Jesus as your savior yet, तो आपके लिए एक मौका है कि आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। so this is a chance for you to accept him as your Lord and Savior. वो प्रभु यीशु मसीह आज आपको बचाना चाहते हैं। And he wants to save you today. वो चाहते हैं कि आप अपने पापों से क्षमा स्वीकार करें। That you will accept forgiveness for your sins. वो चाहते हैं कि यीशु मसीह का जीवन आप स्वीकार करें। And he wants that you will accept or receive Jesus's life. सो यदि आप अपने जीवन में स्वीकारना चाहते तो आप जहां कहीं भी हैं, ये मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। So wherever you are, if you want to receive this life, you can pray this short prayer with me. प्रभु यीशु, Lord प्रभु यीशु, Jesus, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ। I believe in your name. प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ। Lord Jesus, I ask for forgiveness in your name. प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ। And I accept you as my savior, O Lord. आप मेरे जीवन में आइए और मुझे आप मार्गदर्शन कीजिए। You come into my life and guide me. सो यदि आपने छोटी सी प्रार्थना की है तो ये बाइबल आपको गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो गए हैं और आप परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकारे गए हैं। And if you have prayed this short prayer, the Bible guarantees that you have become a son of God and your sins are forgiven. वैसे ही जैसे पिता ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। And exactly the way when the Father said that he is my son and I am well pleased in him. So, आप भी उसके पुत्र के रूप में हैं और आपसे वो प्रसन्न है इस समय। And you are also like his son and he is well pleased with you. यदि आपने ये प्रार्थना की है तो If you have prayed this prayer then, आपसे वो प्रसन्न है so he is well pleased with you.
और आपसे बातें करना चाहता है कि उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुने आप। And he wants to talk to you so that you can listen to his son. उसके वचनों के द्वारा सुने आप। And you'll be able to hear him through his son's words. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, And we thank you, Lord, कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। that you heard our prayer. प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं हमारे चर्च के हर एक परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह। And Father, we thank you for every single family in our church, Lord. प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप पूरी तरह से सुरक्षित रखिए प्रभु, और बातें कीजिए प्रभु। And Father, we submit them into your hands, O Lord. Keep them safe, O Lord. और यदि कोई जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह आप हेल्प कीजिए, प्रोवाइड कीजिए उनके लाइफ में परमेश्वर, और सांत्वना दीजिए प्रभु। Father, comfort them if someone is struggling for job or for finances, O Lord. Help them, O Lord. प्रभु यीशु आपको महिमा देते हैं। Father, we glorify your name, Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। Pray in Jesus' name, amen. मैं गाऊं हालेलुया, शत्रुओं के सामने मैं गाऊं हालेलुया, विश्वास से ज्यादा बढ़कर मैं गाऊं हालेलुया, तेरा गीत मेरा हथियार है, मैं गाऊं हालेलुया, स्वर्ग मेरे ओर है, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा ऊंचा तेरे महिमा के गीत, रात से निकल कर आशा है आई, मौत है हारी, जिंदा यीशुआ, मैं गाऊं हालेलुया, अपनी पूरी जान से मैं गाऊं हालेलुया, अंधेरा सारा दूर हटे, मैं गाऊं हालेलुया, रहस्यों के बीच में मैं गाऊं हालेलुया, डर का अधिकार नहीं मुझ पर, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा ऊंचा तेरे महिमा के गीत, रात से निकल कर आशा है आई, मौत है हारी, जिंदा यीशुआ, गाओ ऊंचा, गाओ ऊंचा, सब लोग मिलकर गाओ ऊंचा, अरे गाओ ऊंचा, गाओ ऊंचा, शत्रुओं के सामने गाओ ऊंचा, विश्वास से ज्यादा बढ़कर गाओ ऊंचा, अरे गाओ ऊंचा, स्वर्ग मेरी ओर है, गाओ ऊंचा, अपनी पूरी जान से गाओ ऊंचा, अंधेरा सारा दूर हटे, गाओ ऊंचा, रहस्यों के बीच में अरे गाओ ऊंचा, डर का अधिकार नहीं मुझ पे, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा ऊंचा तेरे महिमा के गीत, रात से निकल कर
आशा है आई, मौत है हारी, जिंदा यीशुआ। Hallelujah. Hallelujah. Let's give a clap offering to the Lord.